Good morning. Welcome to all of you in the Mangnade College classes. Dear student, today we will discuss about the second concept of the first chapter of your syllabus of 11th standard, that is living word. In the last class, we have already started the first chapter of 11th standard syllabus, and the name of chapter is living word. And in that lesson, we had discussed about what are the characteristics of living organisms. Okay, there are different characters, different properties shown by the living organism we had discussed in the last class. Now, today we had discussed about the diversity in the living worlds. Okay, next part concept of the chapter is diversity in the living world. Living world. You know, living world consists of different kind of living organism in it. Living world consists of different kinds of living organisms in it, and that living organism having different characteristics. Okay, and that living organisms are having particular natures, growth, reproductions, metabolism, consciousness, cellular organization. All these activities are shown by the living organism present in the living world. And living world means biosphere. Biosphere means living organism present in the atmosphere, living organism present in the nature, living organism present around us, surrounding environment are called as biosphere. And in that biosphere, different kinds of living organisms are included, and study of different kinds of living organisms in the nature is also called as biodiversity. Biodiversity. Okay, yeah, living diversity. Diversity means विविधता, changes. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं नेचर में, उन हर एक ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ चेंजेस है ना. और चेंजेस क्यों आते हैं? दैट चेंजेस ऑकर due to evolution, changes occur due to variation, changes occur due to mutation. लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, और वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन होता है. कभी कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होता है, एंड म्यूटेशन आल्सो लीड टू द वेरिएशन. सो वेरिएशन की वजह से क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी आती है, और उस डाइवर्सिटी की स्टडी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन occur in the living organisms, variation occur in the life form present on the earth, present in the atmosphere are called as biodiversity, and number and types of the organism present on the earth referred to as biodiversity. What is biodiversity? Number and types of living organism present on the earth is called as biodiversity. तो आपको पता होगा अप्रोक्सीमेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है 25 मिलियन टू 30 मिलियन तक है ना, एस्टिमेशन किया गया है. मगर रियली कितने फाउंड हुए, रियली कितने प्रेजेंट है? ओके, एस्टिमेशन जो है उसमें से बहुत कम हमने स्टडी किए है ना. ओके, बहुत कम डिस्कवर किए गए हैं. ओके, तो वो जो डिस्कवर किए गए हैं वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, और उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको मिलते हैं नेचर में, उसको हम बोलते हैं इन बायोडाइवर्सिटी यू फाइंड आउट डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज स्पीसीज. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीसीज? ओके, प्रजाति बोलते हैं हम उसको. दैट इज स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग कॉमन ओरिजिन, हैविंग कॉमन जीन पूल. Species is the group of individuals having common gene pool and are naturally interbreed among themselves are called as species. एक ही. So in the biodiversity, different kind of species are found. And what is species? Species is the group of individuals having common gene pool and are freely interbreed among the themselves are called as species. For example, human species है,
टाइगर स्पीसीज है, लायन स्पीसीज है, ओके, डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट प्लांट, मैंगो स्पीसीज है, ओके। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है जिसका जीन ग्रुप कॉमन रहता है और वो नेचुरली ब्रीडिंग कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पीसीज। तो याद रखिए, नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज डिस्क्राइब्ड, ओके। स्पीसीज जो है कितने अभी तक डिस्क्राइब किए हैं? डिस्क्राइब्ड स्पीसीज आर 1.7 to 1.8 मिलियंस। मैंने आपको बोला था एस्टिमेशन कितना हुआ था? 25 मिलियन to 30 मिलियंस, मगर उसमें से डिस्क्राइब कितने किए गए हैं? 1.7 to 1.8 मिलियंस। याद रखिए, among that 1.7 millions, that is 1.2 millions are approximately 1.2 millions are animals and approximately 0.5 millions are plants and microbes, okay, plants and microbes. So this is about the species number of species described in the on the earth surface by scientists, and their name is also given for the study. These are all species are studied by the scientists. Described means they are studied. What are the uses we are studied of that all species. So after completion of concept of biodiversity, okay, now we are discuss about, you know what is biodiversity? Variation occurs in the living organisms, changes occur in the living organisms, okay, it's called as biodiversity, okay. And if that organisms are present in nature having variations in it, now next term is taxonomy. Another concept of the chapter is taxonomy. What is taxonomy? Taxas means arrangement and norms means rules. That is, arrangement of organisms in the particular rules is called as taxonomy. Arrangement of organisms in the particular rules is called as taxonomy. Okay, various organisms are present in the nature, okay, and each and every one has particular place in the nature, okay. Different kinds of living organisms present in the nature, and every living organism have the place in nature, their location, their function is different, and that's why they are called as taxonomy. So what is the meaning of taxonomy? Taxas means arrangement and nomos means rules. That is, arrangement of organisms, classification of organisms, separation of organisms on the basis of particular rule is called as taxonomy. जैसे कि taxonomy हम घर में स्टडी कर सकते हैं, taxonomy हम लैबोरेटरी में स्टडी कर सकते हैं, taxonomy हम लाइब्रेरी में स्टडी कर सकते हैं। लाइब्रेरी में जब हम बुक अरेंजमेंट करते हैं, वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं ना, ओके, एक रूल लगा के अरेंजमेंट करते हैं। तो रूल यूज करके हम जब अरेंजमेंट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसको हम बोलेंगे टैक्सोनॉमी, ओके। लिविंग ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट करने के लिए टैक्सोनॉमी की जरूरत है, एंड इन दैट टैक्सोनॉमी, ओके, इट इज द स्टडी ऑफ, टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं किसकी? इन टैक्सोनॉमी वी अरेंज द ऑर्गेनिजम्स, वी स्टडी द ऑर्गेनिजम्स, and according to that we study what? Their identification of particular organisms. टैक्सोनॉमिक स्टडी में हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं नेचर में, उनका प्लेस कहाँ है, उनका नाम क्या है, वो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसी के साथ साथ उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? सेपरेशन, मेकिंग द ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? द मेथड ऑफ making group and subgroups of the organisms on the basis of their similarities and differences are called as what? Classification. Okay, so in classification we are separate the living organism from each other, okay, according to their group and subgroup, according to their similarity and dissimilarities. उसमें सिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उसका ग्रुप एंड सब ग्रुप करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। देन हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या आता है? नॉमेनक्लेचर।
nomenclature. What is nomenclature? The system of giving name to the particular kind of organism called as nomenclature. nomenclature में हम क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म आपने आइडेंटिफाई किया है, क्लासिफाई किया है, उसको नाम देते हैं ना, क्योंकि उसको बार बार हम स्टडी कर सके, उसको फाइंड आउट कर सके करेक्टली, इसलिए उसको नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे कि हमको भी नाम है, उस नाम से हमको पहचान है, इसलिए नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है, जिसकी वजह से हम उसको पहचान सकते हैं, उसके कैरेक्टर हमारे माइंड में आ सकते हैं। तो ये ओके, तो ये पूरे कंसेप्ट क्या है, टैक्सोनॉमी आते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स and nomenclature of the organisms, all are the concepts are included in the taxonomy. So taxonomy is one of the branch of biology. Taxonomy is one of the branch of biology, and taxonomy, okay, taxonomy is one of the branch of biology, and term taxonomy, okay, given by Linnaeus. Okay, now next is systematics. After taxonomy, another term is systematics. taxonomy के बाद हम जो concept discuss कर रहे हैं, that is systematics. Systematics. Okay, so what is the meaning of systematics? Latin word में, Latin word से word है कौन सा systematics? Okay, systematic is the word coming from Latin language. ओके, लैटिन भाषा से आया है और उसका जो मीनिंग है वो है सिस्टीमा। सिस्टमैटिक इज द वर्ड अराइज फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज कॉल्ड एज सिस्टीमा, एंड व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ओके, सिस्टमैटिक मींस व्हाट? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट of organisms. Systematic arrangement of organisms is called as systematics, and it deals with the evolutionary relationship between the organisms. Systematic क्या करता है? It deals with the evolutionary relationship of ऑर्गेनिज्म। देखो दोनों में फर्क क्या है। टेक्सोनॉमी में हमने क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन किया था, उसका क्लासिफिकेशन किया था, उसको नॉमेनक्लेचर दिया था ना, उसको हम टेक्सोनॉमी बोलते थे। और सिस्टमैटिक जो टर्म है टेक्सोनॉमी की जैसे ही है, मगर उसका पर्पस थोड़ा अलग है। सिस्टमैटिक में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं, मगर कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पे हम किसके बारे में सोचते हैं, उसका इवोल्यूशन किसी कौन से ऑर्गेनिज्म में किस में हुआ है, कौन सा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होके कौन सा न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, वो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं सिस्टमैटिक में। तो सिस्टमैटिक में सबसे इम्पोर्टेंट थीम क्या है, यहाँ पे हम इवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। आपको पता होगा इवोल्यूशन इज नथिंग बट द ग्रेजुअल चेंज ऑफर इन द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो नेचर में जो पहले ऑर्गेनिज्म थे, सभी ऑर्गेनिज्म कैसे थे, सिंपल थे, अभी कैसे बन गए हैं, कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। सो इन सिस्टमैटिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इवोल्यूशन रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, एंड इन इवोल्यूशन रिलेशनशिप, ओके, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटेलियन क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म arises in the ocean water, that is chemoautotrophs. They are anaerobic organisms, okay, and then from that first cell in the ocean many organisms are made, that is archaebacteria, then bacteria, then cyanobacteria, okay, then protista, then fungi, then plantae, and then animalia. All these organisms are made, and that is called as study of evolutionary relationship of the organism is called as systematics. Okay, this is about the systematics. Next is Systema Naturae. याद रखो, Systema Naturae is the book written by Linnaeus. Carolus Linnaeus is the name of scientist who wrote the book called as Systema Naturae. Systema Naturae नाम का एक बुक जो है, वो बुक रिटन किया है किसने? कार्लस लिनियस ने। कार्लस लिनियस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ओके, और उन्होंने सिस्टमैटिक्स टर्म डिस्कस किए हैं।
ओके, और वहाँ पे हम सिस्टमैटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कार्लोस लिनियस गिव द Carlos Linnaeus gave the term systematics, or they written the book Systema Naturae. Next, basic process of the taxonomy. मैंने आपको बोला था taxonomy के बेसिकली 4 प्रोसेस है, 4 टाइप्स है। taxonomy includes 4 process, ओके। taxonomy के अंदर 4 प्रोसेस आपको इंक्लूड होते हैं, ओके। आप देख सकते हो बेसिक प्रोसेस ऑफ taxonomy, बेसिक प्रोसेस of taxonomy, okay। कौन से बेसिक प्रोसेस है? 4, 1 is 2, 3, 4। so first process is characterizations मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का आपको कैरेक्टर याद रहना चाहिए। व्हाट इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशंस? वी हैव टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर नेचर, their behavior, their adaptation, what are characterizations, then their identifications means their characteristics related to find out them, to separate them from another organisms are called identification. Then third is classification, means making the group and subgroup of the organism according to their similarity and dissimilarities, separating them from the other organisms called as classification. And last one is nomenclature means the system of giving name to the properly identified organism is called as nomenclature, okay। so all these are the process involved in the taxonomy, okay, branches of the taxonomy। Next, now first of all, what is characteristics? A characterization means what? Understanding of the character of organisms such as external and internal structures। कैरेक्टराइजेशन में क्या आता है? हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या रहता है? कुछ ना कुछ कैरेक्टर रहता है ना। हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या है? कुछ ना कुछ कैरेक्टर रहता है, कुछ ना कुछ फीचर रहता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैमल्स हम कहेंगे तो बॉडी के ऊपर हेयर्स है, ईयर पिन्ना है, ओके। बाद में बहुत ऐसे मैमल ग्लैंड्स है, ये मैमल के कैरेक्टर है ना। गिविंग बर्थ टू द बेबी है, ओके, विविपेरस है, तो उसके वो कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर स्टडी करके हम उसको जब सेपरेट करते हैं, जब हम उसको अलग बनाते हैं, जब उसकी स्टडी करते हैं, तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टराइजेशन। सो कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है? वी हैव टू अंडरस्टैंड टू फाइंड आउट द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड सच एज द एक्सटर्नल थिंग्स, द एक्सटर्नल नेचर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। कैरेक्टराइजेशन में उस ऑर्गेनिज्म को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसे है उसकी, मतलब प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, वो डिस्कस करते हैं। उसका डेवलपमेंट कैसा होता है हम स्टडी करते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड देयर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आल्सो, ओके। सो दीस आर ऑल कैरेक्टर्स ऑफ इंक्लूडिंग कैरेक्टराइजेशंस, ओके। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मींस their place in the nature, their role in the nature, their habitat in the nature we studied is called as ecological information of the organisms we studied, and that all concepts are called as characterizations, means we studied the external character, internal character, study of cell structure, development of the organisms, and ecological information of the organisms are all character point including characterizations, okay। And next one is identification. Now after characterizations, another term is identification, means who I am, हम कौन है, अमीबा कौन है, प्लांट कौन है, मैंगो कौन है, उसको हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? उस ऑर्गेनिज्म का करेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उस ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन दी जाती है, और उस इंफॉर्मेशन की वजह से, उस ऑर्गेनिज्म डिस्क्रिप्शन की वजह से आप उस ऑर्गेनिज्म को पहचान पाते हो, फाइंड आउट कर पाते हो, उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, इन विच करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज दैट नेमिंग इज पॉसिबल, ओके। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं? उस ऑर्गेनिज्म का करेक्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं। क्या देते हैं? करेक्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं, और डिस्क्रिप्शन की वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्लासिफाई कर पाते हैं, ओके। आइडेंटिफिकेशन में पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हम डिस्क्रिप्शन दे पाते हैं, इंफॉर्मेशन दे पाते हैं,
और उसके वजह से उसको हम इजीली नेमिंग कर पाते हैं, नाम दे पाते हैं, नाम से फाइंड आउट कर पाते हैं। ओके, कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन। ओके, थर्ड थिंग इज क्लासिफिकेशन। ऑलरेडी मैंने आपको बोला था क्लासिफिकेशन इज आल्सो कॉल्ड एज वर्गीकरण। मींस उसको क्या बोलते हैं? सेपरेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं नेचर में, उन सभी को किसी ना किसी कैटेगरी में हमने रख दिया है ना। जैसे कि प्लांट कहा गया तो पूरे प्लांट्स है, किंगडम एनिमल कहा गया एनिमल्स है। ओके, एंजियोस्पर्म कहा गया तो फ्लावरिंग प्लांट्स है, मैमल्स कहा गया तो मैमरी प्लांट्स है। इसका मतलब क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं हम लोग? एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म सेपरेट कर देते हैं। दैट इज मेथड ऑफ मेकिंग ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। याद आ रहा है? क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? उस ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बनाते हैं, सब ग्रुप बनाते हैं। क्यों? किसके वजह से बनाते हैं ग्रुप एंड सब ग्रुप्स? उसके अंदर रहने वाले सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस फाइंड आउट करके जब हम उसका ग्रुप एंड सब ग्रुप बनाते हैं ऑर्गेनिज्म का, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। एंड क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन की वजह से हम क्या करते हैं? उसको कन्वीनिएंट कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं एंड उसको हम बोलते हैं टेक्सा। आपको पता होगा जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तब हम दो टर्म यूज करेंगे। कौन से? क्लासिफिकेशन में हम दो टर्म यूज करेंगे। वन इज कौन सी? कैटेगरी एंड अदर इज टेक्सा। क्या है कैटेगरी, क्या है टेक्सा, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, कैटेगरी एंड टेक्सा के बारे में। ओके, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर कैटेगरी में हम रख देते हैं, उसका टेक्सा स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, एंड लास्ट वन इज नॉमेनक्लेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ what basic process of the taxonomy, that is nomenclature, the system of giving name to the properly identified organism is called as nomenclature. जिस ऑर्गेनिज्म को आपने फाइंड आउट किया है उसको नाम देना, मतलब वो है nomenclature, and it is the standardizations of names of the organisms. इसमें हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड नेम देते हैं किसको? ऑर्गेनिज्म को, such that organism known by the same name, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड नेम देने की वजह से ओके, गिविंग नेम स्टैंडर्ड नेम देने की वजह से क्या होता है? उस ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना। नोन मतलब समझ पाते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, कहाँ है। सो in nomenclature what we do? Giving the name, standardization, standard name we give to the organisms and that organism is known by the same name overall in the world. Nomenclature में क्या करते हैं? स्टैंडर्ड नेम देते हैं और इसकी वजह से they are find out, okay, identify where same name organisms are known by same name। उस ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? सेम नेम होता है। कहाँ पे? होल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में उस ऑर्गेनिज्म का नाम सेम रहता है, उसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ओके, द सिस्टम ऑफ गिविंग नेम टू द प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। ओके, एंड सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। आपको पता होगा नॉमेनक्लेचर के टाइप है पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ओके, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ऐसे टाइप है ना। नॉमेनक्लेचर के टाइप्स है बेसिक, कौन कौन से? पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, सो कार्लस लिनियस is the name of scientist. Linnaeus is the name of scientist who give the term what? Binomial nomenclature. Binomial nomenclature. So what is the meaning of binomial nomenclature? Bi means two. Okay, and the system of naming with two components. Binomial nomenclature में क्या होता है? हर एक नाम के अंदर, नेम के अंदर क्या होते हैं? टू कंपोनेंट रहते हैं ना। In binomial nomenclature, we give the name to the organism which consists of two components. That is
first component of the nomenclature is genus name and second component name is species name. Okay, so बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट रहते हैं, उसमें का पहला जो पार्ट है जेनेरिक नेम है जीनस नेम, सेकंड कंपोनेंट कॉल्ड है स्पीशीज नेम, उसी को हम जेनेरिक एपिथेट एंड स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द कंपोनेंट ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. नाउ बिफोर द स्टडी ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर we should study about the two terms, that is what is ICBN and what is ICZN. ICBN means what? International Code of Botanical Nomenclature. मतलब ये ऐसा कोड है कि जिस कोड की वजह से हम क्या करते हैं, पूरे प्लांट्स बॉटनिकल नेम जो है प्लांट के हम फाइंड आउट करते हैं. एंड व्हाट इज द बॉटनिकल नेम? द साइंटिफिक नेम गिवन टू द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? Scientific name. And scientific name consists of two types, botanical name and zoological name. So ICBN gives botanical name. ICBN में हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का बॉटनिकल नेम देते हैं. फॉर एग्जांपल मैंगो का साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है. मैंगो प्लांट का साइंटिफिक नेम मतलब बॉटनिकल नेम. Scientific name given to the plant is called as botanical name, and International Code of Botanical Nomenclature is called ICBN. and इसमें plant का नाम scientific name देते हैं हम लोग, उसको ICBN बोलते हैं. Okay, suppose Mangifera indica is the scientific name or botanical name of plants. And what is ICZN? ICZN includes International Code of Zoological Nomenclature, that means zoological name. Scientific name given to the animal is called as zoological name, and scientific name given to the plant is called as botanical name. तो botanical name का स्टडी हम ICBN में करते हैं, and zoological name का स्टडी हम nomenclature हम ICZN में स्टडी करते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ पैंथेरा लियो is the zoological name of lion, scientific name of lion. And remember, scientific name also called a binomial nomenclature consists of two parts. First part is genus. First part of the scientific name is genus name, and second part of the scientific name is species name, also called as specific epithets. For example, Mangifera indica is the botanical name of the mango, and Panthera leo or Panthera tigris is the zoological name of tiger. So this is about the botanical name and zoological name. Now next point, universal rules of the binomial nomenclature. Binomial nomenclature जब हम स्टडी करेंगे तो उसके कुछ रूल्स है. What? Universal rules for the binomial nomenclatures. Binomial nomenclature के अंदर कुछ रूल्स है वो आप स्टडी करेंगे. Now which are the rules? Okay, जैसे केमिस्ट्री में आपको पता है IUPAC रूल्स है, वैसे बायोलॉजी में बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर कुछ रूल्स है, वो रूल्स हम डिस्कस करते हैं. ओके, सपोज जीनस नेम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैंगीफेरा, जीनस नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ मैंगीफेरा, और स्पीशीज नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडिका. ओके, जीनस नेम दोनों छोड़ो, जीनस नेम इज मैंगीफेरा एंड स्पीशीज नेम इज इंडिका. ओके, सो मैंगीफेरा इज द जीनस नेम, start with capital letter, and indica is the species name, start with small letter. ये है पहला रूल. ओके, या फिर साइंटिफिक नेम ऑफ द लैटिन और लैटिनाइज लैंग्वेज, जितने भी साइंटिफिक नेम दिए गए हैं वो लैटिन लैंग्वेज में रिटर्न किए गए हैं, लैटिनाइज. ओके, दे आर रिटन इन इटैलिक फॉर्म. ओके, इटैलिक्स, एंड व्हेन हैंडराइटिंग दे आर अंडरलाइंड. याद रखो, जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसको टाइप करते हैं, टाइपराइटिंग करते हैं तो इटैलिक फॉर्म में करते हैं, और जब भी हम उसको हैंडराइटिंग करते हैं तो अंडरलाइन, यहाँ पे मैंने आपको हैंडरलाइन किया, हैंडराइटिंग किया, तो साइंटिफिक नेम जब हम हैंडराइटिंग करते हैं तो उसको अंडरलाइन करेंगे, और जब उसको टाइपराइटिंग करेंगे तो इटैलिक फॉर्म में करेंगे, क्योंकि वो लैटिनाइज वर्ड है ना, लैटिनाइज लैंग्वेज में रिटर्न किया गया है. नंबर 2, फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम इज जीनस नेम. पहले बोला आपको मैंने, फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम इज जीनस नेम एंड जेनेरिक एपिथेट बोलते हैं उसको, एंड सेकंड नेम और पार्ट ऑफ द नेम इज स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज नाम बोलते हैं उसको. जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर,
जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। जीनस का नेम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, स्पीशीज का नेम स्मॉल लेटर शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे मैंगीफेरा का एम कैपिटल है, इंडिका का नेम आई है, स्मॉल है, एंड फाइनली ऑथर का नाम भी हम देते हैं। जैसे कि लीनिएज में स्टडी किया है, ये प्लांट्स लीनिएज में स्टडी किया है, तो साइंटिस्ट का नाम, ऑथर का नाम, जिसने स्टडी किया है उसका नाम हम एब्रिविएटेड फॉर्म में देते हैं। ऑथर्स नेम इन एब्रिविएटेड फॉर्म अपीयर एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। साइंटिफिक नेम के बाद, बायोलॉजिकल नेम के बाद हम क्या करते हैं, ऑथर का नेम देते हैं। ओके, और ऑथर का नेम एब्रिविएटेड फॉर्म में देते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में देते हैं ना। ओके, जीनस नेम, स्पीशीज नेम एंड ऑथर नेम। मैंने आपको बोला ये जीनस नेम है, ये स्पीशीज नेम है, और ये क्या है, लीनियस, दैट इज द नेम ऑफ ऑथर नेम। ऑथर नेम, व्हाट इज ऑथर नेम? द नेम, द पर्सन, ऐसा पर्सन की जिसने क्या किया है, ये प्लांट फाइंड आउट किया है, स्टडी किया है, लीनियस ने, इसलिए उसको ऑथर नेम बोला है। ठीक है, बाद में हम टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हमने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कसिंग किया है, जिसके अंदर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उसी के साथ हमने आज टर्म्स, उसके बाद और एक बार मैं आपको टर्म बोलने वाला हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्नाकुलर नेम एंड साइंटिफिक नेम? Vernacular name is also called as local name given by local peoples in the local language. Local name also called as vernacular name. Okay, और local name जो है, vernacular name जो है local people देते हैं, local language देते हैं। जैसे कि for example मैं बताता हूँ आपको, मैंगो इंग्लिश नेम है, मैंगो इंग्लिश नेम है, मराठी में उसको आंबा बोलते हैं, हिंदी में उसको आम बोलते हैं। इसका मतलब लैंग्वेज टू लैंग्वेज क्या होता है, वही प्लांट्स चेंज होता है, मगर उसकी साइंटिफिक नेम अगर देखते हो, मैंगीफेरा इंडिका, वो परमानेंट है, चेंज नहीं होता। तो वर्नाकुलर नेम एंड साइंटिफिक नेम में फर्क क्या है? वर्नाकुलर नेम इज चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लैंग्वेज टू लैंग्वेज, बट साइंटिफिक नेम इज नॉट चेंज थ्रू आउट द वर्ड। इट इज फिक्स, वो फिक्स रहता है पूरे वर्ड में, चेंज नहीं हो पाता। ओके, और एक रूल्स में आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, रूल्स पे याद रखो। जीनस नेम इज कॉल्ड एज नाउन, जीनस नेम को बोलते हैं नाउन, और स्पीशीज नेम को बोलते हैं एडजेक्टिव। रूल में जीनस का नाम जो है वो नाउन है, और स्पीशीज का नाम क्या है, एडजेक्टिव बोलते हैं उसको। ओके, और एक बात, साइंटिफिक नेम जब हम लिखते हैं तो जीनस और स्पीशीज, वो दोनों का भी नाम क्या है, जिसके अंदर लेटर जो है, द लेटर अल्फाबेट जो है, लेटर जो है नॉट लेस देन 3 एंड मोर देन 13। साइंटिफिक नेम के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म का नाम है, उसके अंदर जो लेटर्स हम यूज करते हैं, दैट लेटर शुड नॉट बी लेस देन 3 और मोर देन 13। वो लेटर 30 से कम ना हो और 30 से ज़्यादा ना हो, ये भी हम इसके याद रखते हैं। और उसके हम कैटेगरीज डिवाइड करते हैं, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज, और हर एक टेक्सा में हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आल्स्टियंस, मैमल्स। ओके, ये हम टेक्सा के फॉर्म में इंक्लूड करते हैं। आल्स्टियन मीन्स ओके डॉग, कैट जैसे एनिमल्स है, और मैमल्स मीन्स जिसमें मेमोरी प्लांट्स है या फिर प्लांट्स है। प्लांट में अलग अलग कैरेक्टर प्लांट के आते हैं। ओके, सो एनिमल, मैमल्स, डॉग, कैट, मैमल्स, ये पूरे टेक्सा है जिसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हम इंक्लूड करते हैं। उसी के बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। ओके, और वो बिग वर्ड है, सिस्टमैटिक के बारे में भी डिस्कस किया है, एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करते हैं, और उसको हम सिस्टमैटिक बोलते हैं, और उसको हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम बोलते हैं फाइलोजेनी। और एक फाइलोजेनी, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। सिस्टमैटिक में जो टर्म आता है उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हम फाइलोजेनी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो पॉइंट डिस्कस किया है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कल हम पॉइंट डिस्कस करेंगे टेक्सोनॉमी कैटेगरीज कौन से, which are the taxonomy categories and how they are classified from each other. Thank you. Have a good day to all. The range and diversity of living organisms increases as we increase the area of our observation. Each different kind of plant, animal or organism represents a species. In other words, species is a group of similar individuals sharing a common gene pool and interbreeding freely, producing fertile progeny.
Today, there are about 1.7 to 1.8 million species known to us, and this number is ever increasing as we explore new areas along with the old ones. The number and types of living organisms on the earth is referred to as biodiversity. It is common to find living organisms being known by different local names in different parts of the world. To avoid this confusion, the name of a living organism must be standardized such that it is known by the same name the world over. This process is known as nomenclature. However, to name an organism, we need to know its correct description and to what organism the name is attached to. This is known as identification. To make the process of identification easier, scientists have assigned a scientific or biological name to every known organism. The scientific names for plants are based on the principles and criteria given in the International Code for Botanical Nomenclature, or ICBN, and for animals in the International Code for Zoological Nomenclature, or ICZN. The procedures to assign a scientific name to an organism have been agreed upon by scientists and biologists all over the world. Scientific names help avoid ambiguity as each organism has just one name. However, certain universal rules are followed while providing a scientific name to a known organism. For example, the scientific name for the sacred fig, commonly known as the peepal tree in India, is Ficus religiosa. Here, as you can see, the scientific name has two components: the generic name and the specific epithet. Ficus represents the genus or the generic name, while religiosa denotes the specific epithet. This system of representing a name with two components is called binomial nomenclature and was devised by Carolus Linnaeus, also known as the father of modern taxonomy. Sometimes, the name of the author who first described the species is written at the end of the specific epithet. For example, in Ficus religiosa Linn, Linn is the abbreviated name for Linnaeus. Moreover, scientific or biological names are generally in Latin or derived from Latin, irrespective of the origin of the organism. Also, when a scientific name is handwritten, both the words in the name are underlined separately, whereas when printed, it is in italics to indicate its Latin origin. Finally, the first word of the genus starts with a capital letter, and the specific epithet starts with a small letter. Apart from assigning scientific names to living organisms, they must be aptly organized for easy study. The process of grouping anything into convenient categories based on easily observable characters is known as classification. For example, plants, animals, roses, flowers, and dogs are groups that we can easily recognize. Each group has specific characteristics
and are convenient categories that help us to study organisms. The scientific term given for these categories is taxa. Here, each of the groups, namely mango trees, apple trees, neem trees, cats and dogs, are all taxa. However, cat is a mammal, and all mammals come under animals. Therefore, a cat, mammals, and animals represent taxa at different levels. This process of classifying living organisms into different taxa based on their characteristics is called taxonomy. Taxonomy isn't new to humans. For ages, humans have been interested in knowing about different types of organisms and the relationships among them. This branch of study is known as systematics, which means systematic arrangement of organisms. However, today, systematics also includes the identification, classification, nomenclature, as well as evolutionary relationships among organisms. Therefore, in this diverse world, it is important to classify and name living organisms for their easy identification and study. Our Earth is a habitat of millions of plants and animals, and new species